स्लाइड दिख रही है? हेलो। हाँ सर। ठीक, शुरू करते हैं। Today our topic is smart sensor architecture and application. And now I will discuss following topics which are covering to the topic of the sensor architecture. First, I will discuss about the introduction, and then I will discuss what is usefulness of the SI technology in a smart sensor, why smart sensor are used, component of the smart sensor, general architecture of the smart sensor, evolution of the smart sensor, and finally I will discuss the advantage, application of the smart sensor, and industrial application area of the smart sensor, and finally I will discuss the disadvantages of the smart sensor. Now I will move to introduction part, and the introduction, the sensor capable of manipulating sensor or the computational to the any derived derived उसके अंदर में या उस computational केसेस को अगर है तो वी हैव स्मार्ट सेंसर. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट सेंसर and smart sensor is the form, yeah, it is manufactured through by using two circuits. First is sensor and the interfacing circuit. Interfacing circuit, that means ki I already told many times ki we are using transducer or sensor. Sensor are the device convert physical quantity into electrical quantity. Converted electrical quantity quality is not so good. It need to be amplified with the help of signal conditioning equipment, and signal conditioning equipment, which in other words we can say that is known as interfacing circuit. So sensor along with interfacing circuit is known as smart sensor. Interfacing circuit means we are using for the generation of the digital quantity. Yani ki first of all we have to convert physical quantity like pressure, displacement, force, etc. These are the physical quantity, which quantity are sensed by the sensor and converted into electrical quantity, and electrical quantity is again converted into digital quantity. And if once a quantity is converted into digital, it easily interface with our computer system, and with the help of our computer system perform many tasks such as manipulation, computation, amplification, attenuation. These operations are performed through the computer system. Yeah, digital signal processing. We have to did different type of the processing through our computer system. ठीक है, तो again I define smart sensor. Smart sensor is formed by combining sensor with interfacing circuit is known as smart sensor, and capable of, what is the capability of the smart sensor? First is the logic function. It perform logic function. Two-way communication. Communication is possible in a smart sensor. Make decisions. So these are the
First is it perform two-way communication. It perform make a decisions. It can be make decisions. These are the feature of the smart sensor. Are you getting my point? चलिए और सुनाइए, सुनाई दे रहा है? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है? स्मार्ट सेंसर का मतलब क्या होता है? हेलो हेलो हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, सुनाई दे रही है। अगर आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो दीज आर द फीचर। अब फीचर्स में क्या क्या आ गया? लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, टू वे कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर सकता है, और इट सेल्फ टेक डिसीजन ले सकता है। नाउ आई विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज ए स्मार्ट सेंसर? दैट मीन्स दिस इज लुक लाइक दैट, दिस इज द स्मार्ट सेंसर। A sensor producing an electrical output when combined with interfacing electronic circuit is known as a smart sensor. It is the combination of both sensor and actuator. It is combination of the both sensor and actuator. Actuator मतलब होता है हमारा, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर हम जो है थर्मिस्टर, थर्मोकपल या आरटीडी अगर यूज करते हैं तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सेंसर विच कन्वर्ट फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल। लेकिन अब फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के अंदर जो है चेंजेस होते हैं, या तो आर के अंदर चेंज होगा, या तो एल के अंदर चेंज होगा, या तो सी के चेंज होगा। अब इस चेंजेस को जो है वोल्टेज के फॉर्म में अगर प्रोड्यूस करना है तो वी मस्ट यूज एसी ब्रिजेस। एसी ब्रिजेज आर द कन्वेंशनल मेथड। अब उसके जगह पे जो है डिजिटल लॉजिक सर्किट हम यूज कर रहे हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न स्मार्ट सेंसर, इन ए मॉडर्न स्मार्ट सेंसर यूजेज आवर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल सर्किट फॉर प्रोड्यूसिंग आउटपुट, सेंसिटिव आउटपुट। इफ any any small amount of the physical changes can be detected through our smart sensor. And smart sensor having some of features such as it perform logic operation, it take decisions, and it communicate one place to another place. This is the basic definition of the smart sensor. And it's simply physical, biological, chemical input and convert it measured value into the digital format. Earlier I told about digital format. If once we are converted into digital format, it can be interfaced with our computer system, and our computer system perform different type of the task, whatever you required and whatever we desired. All the operation are performed through the our computer system. ठीक है, यहां तक समझ में आया? हेलो, पहली आवाज सुन पा रही हो? हाँ सर, सुन पा रही हूँ। हाँ सर। ठीक है। इसके बाद में यूजफुलनेस ऑफ द सिलिकॉन टेक्नोलॉजी इन स्मार्ट सेंसर। as we know, we are widely use silicon material for the manufacturing of the electronics devices, diode, photodiode. Even we are using in a thermistor for the temperature detection. And these are the following features. First, single chip solution. It अगर हम बात करें सिलिकॉन टेक्नोलॉजी का, तो इसका साइज जो है काफी स्मॉल होता है, और एक सिंगल चिप पे जो है इसको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा साइज का होता है। लेस स्पेस इन कॉन्फ़िगरेशन के लिए काफी लेस स्पेस रिक्वायर्ड होता है। वर्क विथ स्मॉल सिग्नल, वी कैन यूज्ड फॉर द small signal also. And why smart sensor? Why we are developing a smart sensor, and why we are
using smart sensor enhance the following applications. First, self calibration, adjust deviation of the output of the sensor from the desired value. डिजायर वैल्यू से अगर डेविएट होता है तो उसको ऑटोमेटिकली ये जो है आउटपुट के डेविएशन को एडजस्ट कर लेता है. कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट ओन स्टेटस. कम्युनिकेशन to obtain the average variance standard deviation for the set of measurements. Multi-sensing, a single smart sensor can be measure pressure, temperature, humidity, gas flow, infrared, chemical reaction, surface acoustic, vapor, etc. These sensor are the multi-objective type sensor which perform different type of the operations, such as if we measure the pressure, temperature, humidity, gas flow, infrared, chemical reactions, surface acoustic, vapor, etc. Cost effective, less hardware and reduction of the repetitive testing make स्मार्ट सेंसर कॉस्ट इफेक्टिव. ठीक है, यहां तक समझ में आया. अब इसमें ये पॉइंट्स हैं जैसे सेल्फ कैलिब्रेशन, जिसमें कि ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो है सेल्फ मेजर कर सकता है. ठीक है, उसके आउटपुट को जो है मेजर कर सकता है. अगर आउटपुट के अंदर अगर वेरिएशन होता है तो उसको जो एडजस्ट कर सकता है, और जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहा है उसको जो है लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट भी कर सकता है. उसको जो है कंप्यूटेशनल प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है. मल्टी फिजिकल क्वांटिटी को जो है एट ए टाइम जो है इसको मेजर कर सकता है, सेंस कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, एटसेट्रा. कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि बहुत सारे क्वांटिटी एट ए टाइम जो है वी आर मेजरिंग थ्रू द स्मार्ट सेंसर, देन इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द सेंसर. ठीक है, अगर यहाँ करें स्मार्ट सेंसर के अलावा अगर नॉर्मल सेंसर यूज करते हैं तो प्रेशर के लिए अलग सेंसर यूज करना पड़ेगा, टेम्परेचर के लिए अलग यूज करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी के लिए अलग यूज करना पड़ेगा, गैस फ्लो के लिए अलग यूज करना पड़ेगा, इंफ्रारेड और केमिकल रिएक्शन के लिए जो है अलग यूज करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सारे लोगों को? सॉरी, चलिए समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद जो है कंपोनेंट ऑफ द स्मार्ट सेंसर, या इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द स्मार्ट सेंसर. पहले हम बात करते हैं नेटवर्क कैपेबल एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें जो है कम्युनिकेशन, इंटरफेस कंट्रोल, मैनेज राउटिंग, TIM डिस्कवरी एंड कंट्रोल, डेटा करेक्शन, interpretation of the manage encoding and decoding. These are the network application process. ठीक है, and second is the transducer interface module, TDS storage, analog signal conditioning, triggering, analog to digital conversion, communication processing, data transfer, लास्ट जो है कम्युनिकेशन. ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ द स्मार्ट सेंसर हैविंग दिस फॉलोइंग कंपोनेंट्स. अब यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट जो चीज हमने यहाँ पे बताया है, सारे कंपोनेंट इसके अंदर यूज होते हैं. ठीक है, दिख रहा है सारी चीजें. ट्रांसड्यूसर, इंडिपेंडेंट इंटरफेस. अब ये नेटवर्क कैपेबल एप्लीकेशन प्रोसेस, ये है हमारे यहाँ पे नेटवर्क है, नेटवर्क से हमको कनेक्ट कर देते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, स्मार्ट सेंसर का एडवांटेज क्या होता है कि जब भी हमको जो है, एक तो स्मार्ट सेंसर के थ्रू जो है मल्टी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं. जैसे हमने बताया कि टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्स, ह्यूमिडिटी etc. are measured through this single smart sensor can measure lot of physical quantity, number of physical quantity, and it can be stored because it's converted into digital
format. If once we got in digitally stored and transmitted through the, अब यहाँ पे नेटवर्क से जैसे हम कनेक्ट कर देंगे किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे, हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, आईओटी का नाम सुना होगा। आईओटी के थ्रू जो है कहीं भी जो है आप इंटरनेट से सेंसर को कनेक्ट करिए और वहां का डेटा जो है आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आया? यस सर। अब इसके बाद जो है जनरल आर्किटेक्चर ऑफ द स्मार्ट सेंसर। स्मार्ट सेंसर के सेंसर का जो जनरल आर्किटेक्चर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज द सेंसर, दिस इज द सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट। सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट का कंसेप्ट मैंने बताया था कि ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट जनरेट होता है उसकी उसकी क्वालिटी जो है काफी पुअर होती है, क्वालिटी काफी पुअर होती है। तो सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट के थ्रू जो है उस सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफाई करके जो है उसका फिर से जो है उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करते हैं, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एडीसी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है ये। और ये जो है 22 कॉन्फ़िगर है, वोल्टेज रेफरेंस है, और ये जो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, और यहाँ पे कंट्रोल फंक्शन है, ये कंट्रोल इंटरफेस है, डिजिटल इंटरफेस है, एनालॉग इंटरफेस है। ठीक है ना, सेंसर इंटरफेस ESIC का जो है ये आर्किटेक्चर है। तो स्मार्ट सेंसर के अंदर जो है ये सारे कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये सारे कंपोनेंट जो है कंबाइंडली फॉर्म, या दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ द स्मार्ट सेंसर। ठीक है, अब इस आर्किटेक्चर के थ्रू जो है जितने भी फीचर्स मैंने अभी बताया था उसको जो है हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है या हाँ सर, समझ में आया। ठीक है, अब देखो इवोल्यूशन ऑफ द स्मार्ट सेंसर। इवोल्यूशन का मतलब कि इसका खोज जो है कब किया था। फर्स्ट जनरेटेड डिवाइस हैड लिटिल इफ एनी इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएटेड विथ देम। सबसे पहले जो है बेसिक जो हम सेंसर जो भी यूज करते थे तो उसका साइज जो है काफी बड़ा होता था। अब बड़ा होने की वजह से जो है वो सारी चीजें जो है काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाती थी। तो इसके बाद जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज किया जाने लगा सेंसर को डेवलप करने के लिए। और इसका जो है फीचर्स क्या होता है कि एट ए टाइम जो है मेनी क्वांटिटी को जो है मेजर कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करके जो है स्मार्ट सेंसर को डेवलप किया गया। जैसा कि स्मार्ट सेंसर भी मैंने बताया था कि सेंसर प्लस इंटरफेसिंग सर्किट इज फॉर्म स्मार्ट सेंसर। ठीक है ना, इंटरफेसिंग सर्किट में क्या होगा, पहले क्या होता था कि हम एसी ब्रिजेज यूज करते थे, उसमें जो है अगर मान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर स्मॉल चेंजेस है तो आउटपुट पे अपीयर ही नहीं होता था, क्योंकि उसका जो है सेंसिटिविटी जो है काफी लो लो था। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या किया जाने लगा, कंपरेटर यूज किया जाने लगा, तो उसका सेंसिटिव काफी बढ़ा। फिर इसके बाद में जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि हम पूरे सिस्टम को ही डिजिटलाइज कर दिए। उससे क्या हुआ कि एट ए टाइम जो है बहुत सारे ऑपरेशन को जो है परफॉर्म कर सकता है हमारा स्मार्ट सेंसर। जैसे सपोज जो है अगर मेजरमेंट की बात करें तो एट ए टाइम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को जो है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो द सेकेंड जनरेशन सेंसर वेयर द पार्ट ऑफ प्योरली analog system with virtually all of the electronics removed from the sensor. That means कि स्टार्टिंग की बात करें तो उसमें जो है एसी ब्रिजेज यूज हो रहे थे जिसमें कि सेंसिटिविटी काफी लो था। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा, फिर इसके बाद जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज किया जाने लगा। तो इस तरह से इसका जो है इवोल्यूशन बढ़ता गया। ठीक है, अब जो है थर्ड जनरेशन स्मार्ट सेंसर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये हमारा ट्रांसड्यूसर है, और ये जो है सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट है, और यहाँ पे एडीसी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, और ये कंप्यूटर सिस्टम है यहाँ पे, और ये जो है हमारा कंप्यूटर और सारे कंप्यूटर से जो है ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से अगर हमको कनेक्ट करना है
तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा। डिजिटल सिग्नल को जो है इजिली हम कंप्यूटर सिस्टम से जो है प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? क्योंकि ट्रांसड्यूसर से फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट के थ्रू जो है जो पुअर क्वालिटी है उसको इंप्रूव करते हैं। फिर इसके बाद में एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन होता है, और जब डिजिटल फॉर्मेट में सिग्नल आ जाता है तो उसका प्रोसेसिंग काफी आसान हो जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो है हम उसको इंटरफेस कर देते हैं। इंटरफेस करने के बाद में बाकी सारे कंप्यूटर सिस्टम से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी वट एवर वी वांट वी कैन डू विथ कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि एक बार इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया तो डेटा का कहीं भी हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। डेटा के अंदर इसमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं हम जो है कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर। तो हम जो है उस सिग्नल का एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, अटेन्युएट कर सकते हैं। वट एवर वी रिक्वायर्ड वी वी विल डू, मतलब हम कर सकते हैं, मतलब वी कैन डू। ठीक है, कर यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। हेलो, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या किया गया, ये जो है हमारा, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेंसर लगाया गया है। पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे सीधे सीधे जो है हम ट्रांसड्यूसर लगा रहे थे। अब ट्रांसड्यूसर और सेंसर में समझने की कोशिश करिए कि जब क्या होता है कि जब फिजिकल क्वांटिटी जो है डिजायर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है, तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सेंसर लगाते हैं। तो सेंसर क्या करता है कि फिजिकल टू फिजिकल कन्वर्जन करता है। ठीक है ना, फिजिकल टू डिजायर फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, और उस डिजायर फिजिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेंसर लगा हुआ है, और ये जो है सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, और ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है ना, इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है ये रोम और रैम जो है इससे इंटरफेस होगा, और ये जो है हमारा होस्ट कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया गया है। तो दीज आर द फोर्थ जनरेशन सिस्टम, फोर्थ जनरेशन स्मार्ट सेंसर। अब थर्ड जनरेशन में क्या हो रहा था, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर यूज किया जा रहा था सेंसर की जगह पे। ठीक है, आगे बढ़े। हेलो, हाँ। अब देखो फिफ्थ जनरेशन में क्या किया गया है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड सेंसर यूज किया गया है। ठीक है ना, और ये जो है हमारा रूम है, यहाँ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, माइक्रो कंप्यूटर है, और ये जो है हमारा सीधे सीधे इसको इससे कनेक्ट है। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है, मिनिमम इंटर कनेक्टिंग केबल का रिक्वायरमेंट होता है, हाई रिलायबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस, इजी टू डिजाइन एंड यूज एंड मेंटेन, इस केबल flexible system, small rough packaging, minimum cost, these are the features। एप्लीकेशन इसका क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है। एक्सीलरोमीटर के अंदर जो है हम स्मार्ट सेंसर को यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द सेंसिंग एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑन ए सिलिकॉन। द एक्सीलरोमीटर itself a metal coated CiO2 cantilever beam that is fabricated on a silicon chip, where the capacitance between the beam and the substrates provide the output signal। मैंने बताया था हम फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल के बेसिक पैरामीटर के अंदर ही चेंज करते हैं। या तो हम आर के अंदर चेंज करते हैं, या कैपेसिटेंस के अंदर चेंज करते हैं, या इंडक्टेंस के अंदर चेंज करते हैं। जैसा कि पहले वाले जो है बेसिक सेंसर में मैं सारी चीजों को बताया हुआ था। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो जब एक्सीलरोमीटर की बात करें तो एक्सीलरोमीटर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसिंग एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन ए सिंगल चिप,
सेंसिंग एलिमेंट को जो है सिलिकॉन चिप पे जो है के साथ हम जो है माउंट करते हैं। एक्सीलरोमीटर इटसेल्फ मेटल कोडेड SiO2 का बना होता है, कैंटिलीवर बीम होती है, दैट इज द फैब्रिकेटेड। अब ये सारी चीजें जो है क्या होती है, एक सिलिकॉन चिप पे जो है फैब्रिकेट होती है। सबसे पहला जो है सेंसिंग एलिमेंट, दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा जो है मेटल कोडेड SiO2 का कैंटिलीवर बीम। ये तीनों चीजें जो है सिलिकॉन चिप के अंदर फैब्रिकेट की जाती हैं, और जिसकी वजह से जो है चेंज होता है, और चेंज होने की वजह से जो है आउटपुट सिग्नल जनरेट होता है। ठीक, फिर ऑप्टिकल सेंसर के अंदर जो है स्मार्ट सेंसर यूज किया जाता है। तो ऑप्टिकल सेंसर इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द स्मार्ट सेंसर विच आर द यूज फॉर द एक्सपोजर इन कैमराज, ऑप्टिकल एंगल encoder, optical arrays. Similar example are the land cell silicon based pressure sensor. तो ऑप्टिकल सेंसर के अंदर भी स्मार्ट सेंसर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, इंफ्रारेड डिटेक्टर। अब इंफ्रारेड डिटेक्टर आडे के अंदर जो है डेवलप एट ए सॉलिड लेबोरेटरी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द इतना here infrared sensing element is developed using the polysilicon यूज करके जो है इंफ्रारेड डिटेक्टर अरे हम यूज करते हैं, हम डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, लास्ट में जो है इंफ्रारेड मल्टी सेंसर। दिस चिप कंटेन MOS device for the signal conditioning with one chip sensor. It developed in University of the California. ठीक है, यहां तक समझ में आया? हाँ सर। अब इसके बाद में स्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के लिए जो है स्मार्ट सेंसर यूज करते हैं। फिर जियोलॉजिकल मैपिंग के लिए जो है स्मार्ट सेंसर यूज करते हैं। इट नीड टू मेनली टू डिटेक्ट द मिनरल। हाँ, जियोलॉजिकल एरिया के अंदर जो मिनरल को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके इसमें स्मार्ट सेंसर यूज करते हैं। डिजिटल इमेजिंग और द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टनल जियोलॉजी के अंदर जो है स्मार्ट सेंसर यूज किया जाता है। रिमोट मेजरमेंट ऑफ द टनल रिस्पॉन्स को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। लास्ट जो है डिसएडवांटेजेस, दीज आर द डिसएडवांटेजेस। द स्मार्ट सेंसर कंसिस्ट ऑफ द बोथ एक्चुएटर एंड सेंसर। अब यहाँ पे एक डिफिनेशन और है कि सेंसर के साथ अगर एक्चुएटर हम यूज करते हैं तो उसको स्मार्ट सेंसर बोलते हैं। सो इट मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर सिंपल सेंसर। Complexity is the much higher in wired smart sensor as consequences the higher। ठीक है, तो आई थिंक स्मार्ट सेंसर आर्किटेक्चर एंड एप्लीकेशन, ये 3 टॉपिक था इस यूनिट के, इस टॉपिक के अंदर। तो ये सारी चीजें मैंने जो है इसमें सारा कवर कर दिया। अब इसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हेलो नहीं सर। शैली, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, ठीक है, सुनाई दे रही है। तो थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो है सारा टॉपिक कवर कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू।